Good afternoon, students. Okay, today we will try to start. Shall I start with geography or shall I start with civics? Civics, Civics. geography, Geography civics. we have given the test today itself. Let us start with civics. Okay, civics, Okay. that is social and political life. Let us start with the social and political life. Okay, understanding our criminal justice system. Lesson 6. Okay. Now, as far as we studied our judicial system, we saw that, okay, in our country we have an independent judiciary. ठीक है ना, हमारे देश में जो है हमने देखा है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं. ओके, और इन 3 प्रमुख अंगों में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके, now this is the heading of the chapter and this is lesson 6 of civics or social and political life. उधर दिख नहीं रहा है. अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा आपको. सर ये क्या हो गया, कैमरा क्यों ऐसे हो गया? आप दिख रहे हो बेटा? मैम आप सही है. यस मैम. Now it is okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, now have a look at this chapter, that is page number 67. The chapter begins with a story. Okay, यहाँ पे एक जो है आपको जो है illustration दिया गया है. आदित्य कुमार, you are disturbing us. Have a look, children. See, one illustration has been provided in this, and this illustration is related to Santi Hembram. Okay, now see, Santi Hembram. Who is she? Santi Hembram is a what? She is a domestic worker. ठीक है ना? She is a domestic worker. And where is she working? She is working in the house of, she is working in the house of Mr. and Mrs. Sinde. मिस्टर एंड मिस्ट्रेस सिंधे, ये कौन है? ओके, मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे जो है शांति के एम्प्लॉयर हैं. ठीक है ना, वो उनके मालिक और मालकिन है जिनके यहाँ वो घर पे काम करती है. यू स्टॉप टॉकिंग. वेयर इज योर बुक? पीयूष त्रिपाठी, have a look, children. See, the illustration starts here. See, when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. हमें ये पता है कि जो कॉलोनियल रूल था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश शासन था, उसमें हमें बोलने का अधिकार नहीं था. ओके, और अंग्रेजों ने जो कानून व्यवस्था जो थी, ओके, आप देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हुए थे, लेकिन इन सारे गवर्नर जनरल्स में हम एक गवर्नर जनरल का जिक्र कर, एक गवर्नर जनरल का जो है नाम ले सकते हैं जो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें जो है उन्होंने रिफॉर्म लाया था. हु वाज दिस? Can you name the British Governor General who brought reform in the existing judicial system? Yes, it was Warren Hastings. Okay, Warren Hastings जो गवर्नर जनरल थे उनका 2 समय काल था. ठीक है ना, 2 बार जो है वो गवर्नर जनरल्स बने और अपने समय काल में जो है, शासन काल में जो है, उन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें जो है सुधार लाया था. ओके, सुधार लाए थे. और वो सुधार क्या था? ओके, हम भारतीयों को बहुत अच्छे से समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो हिंदू पंडित थे, 11 हिंदू पंडितों को उन्होंने कहा था कि आप जो हिंदू जो ग्रंथ है, ठीक है ना, कानून से संबंधित जो किताबें हैं उनका आप अध्ययन करिए और उनका एक समावेश आप तैयार करिए. ओके, यू प्रिपेयर अ डाइजेस्ट ऑफ द ओके लॉ बुक्स that is there related to Hinduism. And he also asked the Maulvis, okay, he also asked the Maulvis to prepare a digest of the Islamic law. ठीक है ना, आप देखेंगे among the Muslims there is शरीयत, उनका एक अलग का कानून होता है शरीयत. okay, they follow this शरीयत. okay, so in order to have a efficient administration of the country, we saw Warren Hastings. Okay, it was Warren Hastings who brought changes in the administrative system of the country. Now here an illustration is given.
But on the whole, if we look at the colonial rule, if we look at the British, what we see that the British, okay, the rule of the British, it was arbitrary, ठीक है ना। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कानून पास किए जो हम भारतीयों के पक्ष में नहीं था। जैसे कि आप राउलेट एक्ट ले सकते हो। व्हेन वाज दिस राउलेट एक्ट पास्ड? राउलेट एक्ट कब पास किया गया था? जिसके तुरंत बाद 1919 जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मार्च 1919 99 11th of March. 11th Yes, of ma'am. March, isn't it? Okay, 1919 this Yes, Rowlatt ma'am. Act was passed. And apart from that, in the year 1870, which act was passed? मैम सेडिशन। Yes, it was the Sedition Act. इन दोनों कानूनों को पास करने के पीछे उद्देश्य यही था अंग्रेजी हुकूमत की कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाया जाता था या उसके खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए पाया जाता था, तो उसके साथ क्या किया जाता था? उसको बिना कारण जो है अरेस्ट कर लिया जाता था और बिना उस व्यक्ति को जो है कोर्ट में प्रस्तुत किए बिना ही उसके ऊपर जो है आरोप लगा दी जाती थी और उसको कारावास में भेज दिया जाता था। द पर्सन, okay, who tried to protest against the British government, that person was, okay, simply arrested and that person was subjected to punishment. He was sent to jail without even undergoing trial. Okay, हमारे ये देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें क्या है? उसमें ये है कि अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाया जा रहा है, आपको जो है, ठीक है ना, किसी क्राइम में आपको इन्वॉल्व पाया जा रहा है, तो पुलिस का कार्य होगा आपको शक के आधार पे जो है अरेस्ट करेगी पुलिस और आपको जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जो है जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और जो जज होंगे वो सारे तथ्यों को देखेंगे, सबूतों को ओके समझेंगे और उसके आधार पे जो है वो सजा सुनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में आपको कुछ अधिकार मिल रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। बट अतीत में ओके ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश शासन में हम देखते हैं कि द इंडियंस दे वर नॉट अलाउड टू ओके एंजॉय एनी काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच. They were subjected to okay extreme torture by the British government, especially when these acts were passed. और इसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि ओके शांतिपूर्वक जो है जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे और अपने दो नेताओं के अरेस्ट होने के खिलाफ जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। बट वी सी जनरल डायर एंटरिंग द ओके गार्डन एंड ही स्टार्टेड फायरिंग, ठीक है ना। Yes, ma'am. अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं एंड द मैसेकर टेक प्लेस, जनसंहार कर डालते हैं वो लोगों का। ओके, किन दो नेताओं का प्रोटेस्ट किया जा रहा था? अंग्रेजी हुकूमत ने दो नेताओं को अरेस्ट किया, इसका विरोध प्रदर्शन वहां पे लोग कर रहे थे। कैन यू नेम द टू लीडर्स? डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। Okay, it was Satyapal and Saifuddin Kichlu. Okay, now have a look children, let us come back to our lesson, page number 66. When we see someone violating the law, okay, we immediately think of informing the police. जब हम किसी को भी कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हम जो है पुलिस को जो है सूचित करते हैं। You might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. Okay, because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think it is the police who decide whether a person is guilty or not. Okay, हम पुलिस की इस भूमिका को, ठीक है ना, जब हम पुलिस अपने आसपास हो रहे घटनाओं को देखते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इलीगल चीजों में लिप्त पाया जाता है, ओके, गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो हम तुरंत जो पुलिस अधिकारी होती है होते हैं या फिर जो समीप में जो पुलिस चौकी होती है वहां पे जाके हम FIR कर देते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कंप्लेन करते हैं और पुलिस अधिकारी आके उस व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन हम इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि पुलिस सजा देती है उस व्यक्ति को या कोई और देता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो देर इज different roles are played by different people. As far as the police is concerned, the role of the police is just to arrest the person. Okay, it is not the police okay who decides whether the person is guilty or not. See, after a person is arrested, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. According to the constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. Okay, now what do you mean by a fair trial? What is fair trial? ओके हमारा संविधान ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है उसे अधिकार है कि उसको जो है उसके साथ जो है फेयर ट्रायल हो. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल? इसी चीज को हम समझेंगे इस चैप्टर में. देखो फेयर ट्रायल क्या होता है उसी चीज को समझाने के लिए, ठीक है ना, फेयर ट्रायल क्या होता है उसी चीज को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है. शांति हेम्ब्रम का ये केस है और इसमें हम देखते हैं कि शांति हेम्ब्रम कौन है? एक काम करने वाली महिला है. जो मिस्टर और मिसेस, ठीक है, मिस्टर और मिसेस सिंधे के यहाँ काम कर रही है, ठीक है ना, और वो कई वर्षों से वहां पे काम कर रही हैं. एक दिन जो है मिस्टर सिंधे इन दोनों दंपति को जो है कहीं पार्टी में जाना होता है और जो उनकी पत्नी है उनको उनका गोल्ड चेन नहीं मिलता है. अपने ड्रॉर में वो ढूंढती हैं और जब लेट होने लगता है तो मिस्टर सिंधे को कहते हैं कि हो सकता है शांति ने चोरी की है. अब मिस्टर सिंधे जो है एक तरफ तो पुलिस को फोन कर देते हैं और दूसरी तरफ जो है ठीक है ना, बिना शांति को सूचित किए जाके उसके रूम में उसके ट्रंक को खोल के देखते हैं और जब उसमें देखते हैं तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, अराउंड 10,000 रुपीज. तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि शांति ने जो है अपनी मालकिन की चेन चोरी की है और उसको बेच के वो पैसे इकट्ठे किए हैं. अब शांति जो है वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती है. वो बार बार दोनों से कहती है कि उसने चोरी नहीं की है, चेन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और जो पैसे उसके ट्रंक में पाए गए हैं वो उसके और उसके भाई के सेविंग्स हैं. वो लोग इस पैसे को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं ताकि जब वो वापस अपने गांव जाए तो वहां पे जाके बैल खरीद सकें और खेती कर सकें. ठीक है, एंड दिस इज हाउ द स्टोरी बिगिंस. वेयर शांति इज चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम विच शी हैज नॉट डन. तो शांति के ऊपर वो आरोप लगाए जा रहे हैं जो उसने किए नहीं है. अब ये कौन साबित करेगा? ये कौन साबित करेगा कि शांति जो है गुनहगार है कि वो जो है बेगुनाह है? Who will prove this? It is the कोर्ट. ठीक है ना, हमारी न्यायपालिका, जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे और हम इस चीज को पता करने की कोशिश करेंगे कि दोषी है कौन. आप इतने सारे जो है सीरियल्स देखते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सावधान इंडिया देख रहे हैं, इतने सारे आप सीरियल्स देख रहे हैं, उसमें आपका जो है जब भी आप देखते हैं तो आपका दिमाग जो है सोचता है कि ये व्यक्ति दोषी होगा, लेकिन एट द एंड व्हेन द एपिसोड इज अबाउट टू एंड यू सी दैट द रियल कल्प्रिट इज कॉट, इजंट इट? तो रियल कल्प्रिट को कौन पकड़ता है? इट इज द पुलिस. ठीक है ना, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो पकड़ते हैं. और वो कैसे पकड़ते हैं? थ्रू व्हाट? थ्रू देयर परफॉर्मेंस. वो बहुत बारीकी से हर तथ्यों को समझते हैं, खंगालते हैं, उसके बाद जो है एक निर्णय पे पहुंचते हैं और उस कल्प्रेट को पकड़ते हैं. ठीक है, सो द रोल ऑफ द पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हेन वी गो थ्रू दिस स्टोरी वी सी दैट द रोल दैट वाज प्लेड बाय मिस्टर राव, इट वाज नॉट जस्टिफाइड. यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो शांति को पकड़ के ले जाते हैं उनका नाम मिस्टर राव है और वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से नहीं निभा रहे, जिसका नतीजा शांति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण 1 साल जो है जेल में बिताने पड़ते हैं. सो व्हाट यू पीपल विल डू इज यू विल गो थ्रू द स्टोरी वेरी नाइसली. आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हर एक चीज को. Now let us start with the story. Have a look. Date. Have a look at the date. 18/7/2006. तो 18 जुलाई 2006. 18 जुलाई 2006 को हम देखते हैं
ओके, कि मिसेस सिंधे, वी सी मिसेस सिंधे ओके इज सर्चिंग हर चेन, वो अपना गोल्ड चेन सर्च कर रही हैं, ठीक है ना। उनको पार्टी में जाना है, वो अपने सोने की चेन को जो है ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ओके, now see, at their apartment in Mumbai, Mistress Sindhe is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. I am sure Okay, it good. was I am sure it was in this drawer. Where could it be? Hurry up. We are going to be late for the wedding. When the school was going on, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स बना देती थी और बच्चे अपना अपना रोल जो है अपने अपने डायलॉग्स बोलते थे एंड द क्लास बिकेम इंटरेस्टिंग, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, now see, I can't find my gold chain. It is not in the drawer. I suspect that Santi might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. अब देखो मिसेस सिंधे क्या तर्क दे रही हैं. मिसेस सिंधे जो है वो कह रही हैं कि मुझे मेरा चेन नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से शांति ने चोरी की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय बिताती है मेरे रूम की साफ सफाई करने में. अब मान लो एक व्यक्ति को आप काम पे रखते हैं, तो उसका जो व्यक्ति काम पे रहता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने मालिक और मालकिन को खुश रखना, ठीक है ना. इतना अच्छे से काम करना कि आप उसके ऊपर जो है खुश रहेंगे, आप उसको जो है रियायत देंगे, ठीक है ना. हाँ, बोनस देंगे, अवार्ड्स देंगे. इसलिए जो है जो सर्वेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, खास करके ओके आपके लिए. अब देखो वो ज्यादा समय बिता रही है, तो इसका मतलब उसने ही चेन जो है चोरी कर लिया. सी, शांति हेम्ब्रेम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर पास्ट 3 years. ओके, तो शांति कितने सालों से काम कर रही है? 3 साल से. पिछले 3 साल से जो है वो वहां पे काम कर रही है. ओके, नाउ सी, अब देखो मिस्ट्रेस सिंधे जो है शांति को बुला के पूछ रही है, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ? क्या तुम अब चोरी करना भी शुरू कर दी हो, और वो भी मेरा सोने का चेन? हाँ, जाओ जाके अपना बक्सा ले आओ, ठीक है ना. मैं उसको जो है सर्च करूंगी, उसको देखूंगी, और हमने पुलिस को भी बोल दिया है. तो अगर तुम्हारे पास चेन है तो उसको तुरंत वापस कर दो. अब शांति कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ओके, और मैंने कोई चोरी नहीं की है. Now see, Mr. Sindhe searches Shanti's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. अब मिस्टर सिंधे जो है उसके बक्से को जो है खंगालते हैं और वहां से उनको 10,000 रुपए मिलते हैं एक लिफाफे में. Okay, he screams at Shanti saying that this is the money she has got from selling the chain. Okay, अब वो उस पे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुमने जो है तुमने जो है पैसे चोरी किए हैं, 10,000 सी इन ट्रंक. तो देखो 10,000 रुपए जो है वो कवर होते हैं शांति के ट्रंक से. ओके, साहब, माय ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. वी वांट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज. मैडम, आई एम इनोसेंट. अब शांति वो अपना जो है वो अपनी सफाई दे रही है, कह रही है कि ये हमारी सेविंग्स है, हमने इसको बचाया है, मैं और मेरे भाई ने जो है मिलके इसको बचाया है, और हम लोग इसको बचा रहे हैं ताकि जब हम लोग गांव जाएं तो एक बैल खरीद सके खेती करने के लिए. देखो, मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन. अब मिस्टर शिंदे जो है पुलिस स्टेशन चले गए. आई हैव कम टू फाइल एन FIR. ओके, देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस. माय मेड शांति हैज स्टोलन माय वाइफ्स नेकलेस. ओके, देखो चोरी हुआ है चेन. ओके, और वो वहां पे क्या जाके बोल रहे हैं, तथ्यों को घुमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हार चोरी हो गई है, ठीक है ना. अब चेन के बदले हार चोरी हो गई है. अब देखो, ओके, सो शिंदे व्हाट इज डूइंग, ही मिस्टर शिंदे गोज टू पुलिस स्टेशन, ठीक है, और वहां पे जो है वो क्या लॉन्च करते हैं, वहां पे वो FIR लॉन्च करते हैं. व्हाट इज FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ओके, ये जो FIR होता है, ठीक है ना, इसमें हर वो जानकारी लिखी जाती है. ओके, जो कल्प्रिट है, जिसके ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, उसका नाम लिखा जाता है. ओके, किस समय में घटना घटी है, कहाँ पे घटी है, कौन दोषी है, ठीक है ना. ओके, और कौन व्यक्ति उस पे ये आरोप लगा रहा है, हर वो जानकारी इस FIR में होती है. ओके, ठीक है ना.
Every information is there in this FIR. See, Sub Inspector SI. Yes, okay. Sub Inspector SI Rao records Mr. Sindhe's FIR. वो जो है FIR जो है, okay, तुरंत लिख लेते हैं. देखो, पेज नंबर 68. Mr. Sindhe returns with Sub Inspector Rao. I will now write the statements that Mr. and Mrs. Sindhe make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as a evidence. I am arresting Santi and taking her to the police station. अब देखो यहाँ पे SI राव, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर राव जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत गलत है. ओके, आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी ये वस्तु चोरी हो गई है, तो क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अच्छे से तहकीकात करें कि जो व्यक्ति आके आपसे FIR लिखवा रहा है, हाँ, क्या वो वास्तव में सही है या वो गलत है? झूठी रिपोर्ट भी तो लिखवा सकता है. यस मैम. अब यहाँ पे SI राव जो है कुछ नहीं करते हैं. SI राव जिस हिसाब से मिस्टर सिंधे उनको बोलते हैं वो उस हिसाब से जो है आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब वो जो है जो एनवेलप मिला है 10,000 रुपए का, उसको वो सील कर लेते हैं और शांति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं. नाउ सी, ओके, नाउ द सेकेंड डेट 19/7/06. ओके, अगले दिन देखो क्या हो रहा है. Sushil, Shanti's brother, arrives and pleads with SI Rao to release Shanti. She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. But where will I get the money to hire a lawyer? And who will stand as surety for her? You have taken all our savings and sealed it. अब शांति का जो भाई है सुशील, ओके, सुशील शांति's ब्रदर, ठीक है ना, इसको जो है एक नाटकीय रूप में जो है इसको मंचन करने की कोशिश की गई है ताकि आप चीज़ों को समझें कि ये न्यायिक प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, ओके, उसको न्याय मिलती है. तो देखो यहाँ पे, हैव अ लुक चिल्ड्रन. अब सुशील कहता है कि सुशील कह रहा है कि आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए, ठीक है, और इस पे SI राव कहते हैं कि जाओ जाके बेल ऑर्डर लेके आओ. ओके, बेल ऑर्डर जो है हमें जो है जज जो होते हैं वो देते हैं और उसके लिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है. ओके, अब मान लो चोरी का इल्जाम लगा है तो जितने अमाउंट की चोरी लगी है, ठीक है ना, मान लो 20,000 की चोरी लगी है तो वो आपको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, तभी जाके आपको बेल ऑर्डर मिलेगा. ठीक है ना. अब सुशील कहता है कि जो हमारी सेविंग्स थी वो तो आप रख ली हैं, तो मैं कैसे बेल ऑर्डर ले आऊं. सी, SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days. अब SI राव जो कर रहे हैं ये एकदम गलत कर रहे हैं. SI राव कीप्स सुशील, ओके. अब आप किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. आप पूछताछ के लिए भी जो है, ओके, आप किसी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर 2 days. तो देखो SI राव कीप सुशील इन जेल फॉर 2 days और उसके साथ वो अत्याचार भी करते हैं. देखो, सी, सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड द पुलिस कांस्टेबल्स. Then try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from Sindhe's neighborhood. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, okay, the police let him go after 2 days. Okay, तो सुशील क्या काम करते हैं, ओके, ही इज अ फैक्ट्री वर्कर, ठीक है ना, कारखाने में जो है वो मजदूर के रूप में काम करते हैं. ओके, अब SI राव जो है उनको अब्यूज करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं और बाय फोर्स जो है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते हैं कि चोरी उन्होंने ही की है. दोनों भाई बहन ने मिलकर चोरी की है और वो लोग जो है दे आर ओके हेडिंग अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है ना. और उस लोकेलिटी में जितने भी चोरियां हो रही हैं उसके सरदार हैं ये लोग, ठीक है, ठीक है ना. SI राव का कहना यही है. नाउ सी द सेकेंड डेट, थर्ड डेट
23/8/2006। तो घटना कब शुरू हुई थी? 18/7/6। ठीक है, अब देखो 1 महीने बीत गए। month में 1 month have passed by. 1 month have passed by, Yes. and what we see, although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for ₹20,000। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, ओके, जो भी कोई भी चीज चोरी होती है तो उसका अमाउंट होता है, ओके, इतने अमाउंट की वो आइटम है और उसकी जो है कीमत आपको चुकानी होगी, ओके। तो देखो शांति को जो है बेल मिल रहा है कितने दिन बाद? वैसे तो अगर हम न्यायिक प्रक्रिया को पकड़ें, अगर न्यायिक प्रक्रिया को पकड़ें तो 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना है, ठीक है ना, yes ma'am विदिन 24 आवर्स। बट हियर व्हाट वी सी, आफ्टर अ मंथ, लगभग 1 1 महीने month के बाद, लगभग 1 महीने के बाद जो है शांति को बेल मिल रही है, बट कोई सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको रिहा नहीं किया गया। Okay, even after getting bail, she is not released from the jail. Okay, now see, she therefore continued to be in jail. She is very traumatized, वो दहशत में है, okay, she is worried about what will happen during the trial, और वो इस चीज को जो है भयभीत है कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, ओके, जब आपको पता है कि जब किसी के ऊपर दोष लगाया जाता है, खास करके जो बेगुनाह होता है, ओके, और जो गरीब होता है, ठीक है ना, तो हर वो संभव कोशिश, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो हर संभव कोशिश करता है कि बाय हुक और बाय क्रूक उसको दोषी साबित कर दे, ओके, और जो है अपनी जो है शांति से रह सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, yes ma'am ओके, हम देख रहे हैं कि मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है अपनी आर्थिक स्थिति का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, और शांति को जो है बिना सोचे समझे उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब शांति को जो है ये भी भय सता रहा है कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया जो चलेगी बहुत लंबी चलेगी, और इसके वजह से जो है क्या होगा उसके साथ। चिल्ड्रन, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू पीपल कि बेटा, Thank you, ma'am. थैंक यू।